A New York chapter was established 21 years ago, and it is the today is the 21st annual chapter, and the goal is to motivate and broaden the base of the Apna New York chapter and more involve the young physicians because they are the future of Apna leadership. In the previous years, young physicians have been neglected, and so it has been limited to small group. So this year we are trying to expand it in this case because Apna is basically the purpose is to serve the community. If we would have more member, young blood, young doctors, so we can serve the community to our level best. We have established Apna New York House for the young physicians, male physicians, for the last few years, and is going very successfully. Believe me or not, it is like in 1 year I can say more than 2 to 300 young physicians. They revolve and they come and they stay there. But it was felt by the all senior fellows, our colleagues, that there is a huge need. I receive every week few emails from the young female physicians who have nobody here to accommodate them. So this year we would announce and we would try to establish an Apna house for our female young physicians who come from all the way from Pakistan and to accommodate here during their interviews and while they have to wait for their positions, to get their positions. So we're trying to facilitate that. Our future plan is just not limited to expand our membership, to increase the community services, not only in the greater New York area, and we are already serving at global level, including the 2008, the earthquake disaster. Either it's in Nepal or somewhere else, it's not just limited to Pakistan. So that's our goal, to take it to the maximum level in all the medical colleges and the alumni and associations of different medical colleges. Trust me, they have contributed through the Central Apna, through the alumni, which are also part of the Apna, millions of dollars to upgrade the facilities, ERs, and the other equipment and the different medical facility centers like renal dialysis, like liver dialysis, which was never there before. आज ये हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था जो कि अपना न्यूयॉर्क चैप्टर और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज अलुमनाई के फंक्शन था. इसमें हम लोगों ने यंग फिजिशियन गाइडेंस सेमिनार किया था आज, जिसमें ओवर 100 फिजिशियन जिनको हम रेजिडेंसी दिलाने में मदद करने का सेमिनार किया. हाँ, आज हम लोग ये एक और चीज़ अनाउंस कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यूयॉर्क पे अपना का लेडीज़ हाउस बना रहे हैं, जिसमें जो है जैसे मेल हाउस अपना का है मेल डॉक्टर्स के लिए, उसी तरह फीमेल्स के लिए. खुशी हुई है कि अपना के तहत आज ये जो डिनर है इसमें मैं शामिल हूँ, तो ये मुझे देखकर एक अजीब किस्म की मुसरत होती है कि जब भी पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं और उसके साथ साथ उम्मीद भी रखते हैं, उनके अंदर एक ऑप्टिमिज़म है, वो पाकिस्तान को उभरता हुआ देखना चाहते हैं. हौसले से, उनकी सपोर्ट से, उनकी कोलैबोरेशन से, उनकी पार्टिसिपेशन से पाकिस्तान राइज़ करेगा और हम एक नए उफ़क़ को तुलू होता हुआ देखेंगे. यहाँ पे यंग फिजिशियंस बहुत हैं. वी हेल्प देम इन गेटिंग देयर रेजिडेंसी, हाउ टू राइट रेज्यूमे, उनको थोड़ा कनेक्शन दिला दिए, रिसर्च दिला दिया. तो इस तरह it's basically, and then of course the social. It's a lot to do with the social gathering because there is always food and music involved, and that's the attraction for people to come. This time we are doing it in Westchester, and the main reason is we want Westchester people to kind of mingle with other crowd like Long Island, Queens, Manhattan. A lot of time ये वाला कन्वेंशन होता था क्वींस में या लॉन्ग आइलैंड में, तो यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पाते थे. तो हमने एक कोशिश करी है कि ये सेंटर में रखें ताकि सब लोग आएँ और मिल के बैठें. और because end of the day we are one, it's one organization, we all go to अपना, whether we live in Manhattan, Westchester, Long Island, हम सारे अपना के members हैं, सब जाते हैं. तो लेकिन यहाँ लोकली जब चीज़ें होती हैं तो वो फिर एक छोटे से एरिए में होके रह जाती हैं. तो इस दफ़ा डॉक्टर इम्तियाज़ did a wonderful job by doing what he did, and he really is working very hard, or he has a very big team. So I think it's going very well. Alhamdulillah, I was so excited. I'm the secretary of Apna and running for president, but young physician seminar was amazing. We were able to do a lot of things that you witnessed today, and there were so many participants.
including the program directors, the ECFMG and whatnot. But this is what Apna is all about, you know, taking care of our own as well as serving our community. And that's what we can. और हम लोग ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं और सोशलाइज करते हैं, और इसके अलावा हमने न्यू जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए अरेंज किया था ताकि वो आएँ, उनको गाइडेंस मिले कि किस तरह से उन्होंने आगे रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है। और हम USMLE जो हैं उनकी जो फैकल्टी है उसमें से भी लोगों को बुलाते हैं ताकि वो इनको गाइड करें कि किस तरह से आपने एग्ज़ाम्स लेने हैं और किस तरह से आपने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है। एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर यंग फिजिशियंस एंड ऑल्सो फॉर द ओल्डर प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस टू सोशलाइज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। यंग लेडी डॉक्टर्स जो यहाँ आती हैं उनको अप्लाई करने से पहले और एग्ज़ाम लेने से पहले हाउसिंग का प्रॉब्लम होता है, और क्योंकि ज़ाहिर है लेडी डॉक्टर्स जो हैं वो हर जगह नहीं ठहर सकती, तो इसलिए हम लोग अरेंज कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क में हम लेडी डॉक्टर्स के लिए एक अपना हाउस बनाएं जिसमें वो लेडी डॉक्टर्स आके बड़े सेफ्टी से और आराम से रह सकें, और फिर उसके हिसाब से वो एग्ज़ाम्स दें और रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें, और अपना न्यूयॉर्क चैप्टर जो है वो उनको फुली सपोर्ट कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सिल्वत शेख फ़याज़ है। मैं नॉर्थवेल के लिए काम करती हूँ और पैथोलॉजिस्ट हूँ। मेरे ख़्याल में जो यंगर ग्रुप है उसके लिए ये कन्वेंशन बहुत अच्छी साबित हुई है और होगी, और आइंदा फ्यूचर में अगर वो जितना ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करेंगे उनके लिए भी अच्छा है और हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। और मेरे ख़्याल में जो डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स और यंगर्स हैं, वो काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं और इसी तरह करती हैं। मेरा नाम रिफत जैदी है और मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और आई एम वर्किंग एज एन ऑर्थोपीडिक सर्जन इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। आज यहाँ पे न्यूयॉर्क चैप्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ न्यूयॉर्क एपना का न्यूयॉर्क चैप्टर और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज अलमनाई एसोसिएशन की जॉइंट मीटिंग हो रही है, और इसकी जो वजह है, एक तो ये एनुअल सोशल इवेंट है, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमने इस दफ़ा की है वो है कि जो नए फिजिशंस पाकिस्तानी आ रहे हैं अमेरिका में, उनको हम लोग जो पुराने इस्टेब्लिश्ड फिजिशंस हैं वो किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। तो आज ECFMG के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी आई हुई थी, उन्होंने भी टिप्स दी, और बाकी जो प्रोग्राम डायरेक्टर्स थे काफ़ी सारे वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी जो एप्लीकेंट्स हैं उनको टिप्स दी। और उस सिलसिले में वी वांट के पाकिस्तानीज़ जो हैं वो अभी सिर्फ 5% हैं जो आ रहे हैं ओवरसीज़ फिजिशंस में से, तो वी वांट टू इंक्रीज़ दैट नंबर। सो दिस ऑल दिस इवेंट दैट यू सी, ऑल दी रेगेलिया हेयर, so this is all for these people so that we induct more Pakistanis into United States मेडिकल फील्ड। देखिए, दुनिया में कहीं भी लोग जब माइग्रेट करते हैं, वो अपनी नई बस्तियां बसाते हैं, तो उसके अंदर एक इवॉल्विंग टाइम आता है उस जनरेशन के ऊपर। और मेरे ख्याल में अपना को देख के आपको ज़ाहिर होगा कि 80s का ज़माना था जब यही यंग डॉक्टर्स पाकिस्तान से आ रहे थे दुनिया मुख्तलिफ़ इलाकों से, और वो अपना स्टडी कर रहे थे, और देखते देखते वो उन्होंने इस मुल्क के अंदर परवरिश पाई, एक अच्छा मतलब वो का एक प्रोफेशन में वो आए, अपने कामयाब हुए, और आज वो यहाँ खड़े हैं कि जहाँ वो एक नुमायाँ जमात जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ के पाकिस्तानियों को। और इसी किस्म की एजुकेटेड क्लास जो है वो उनको अगर एक मौका मिले पनपने का किसी भी जगह, तो वो उनका एक असर होता है, फिर वो लोकल पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम अमेरिका में जैसे यहाँ है वो उसमें दाखिल होते हैं, तो वो एक अच्छी कौम की जैसे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस वो एक प्रैक्टिकल इस मुल्क में रहते हुए इसके लिए फ़ायदेमंद साबित। हम लोग यहाँ जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी स्किल्ड, दे आर वेरी स्मार्ट। उन लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है ऑब्टेनिंग रेजिडेंसीज हियर एंड गेटिंग मैच्ड। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम था। हम लोगों की इस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि हमारे नंबर्स इंक्रीज़ हों। जब हम इन बच्चों की हेल्प करेंगे टू गेट matched into some residency program, so definitely they are going to become apna members, so we help them and it helps us, so it is a bilateral relationship। और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पे। ECFMG की वाइस प्रेसिडेंट एलिजाबेथ भी यहाँ पे थी, प्रोग्राम डायरेक्टर्स थे, they gave valuable information to these very smart kids, few things that they do here and there which they should not
انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ان کو کریکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بہت ہی اچھے اور ایبل پروگرام ڈائریکٹرز پاکستانی اینڈ انڈین اینڈ ادرس جو کہ ریناؤنڈ میڈیکل یونیورسٹیز کے یہاں پہ پروگرام ڈائریکٹرز ہیں وہ یہاں تھے اور انہوں نے انفارمیشن دی. ہوپ فلی وی گیٹ 100% میچڈ. ECFMG کی ڈائریکٹر وائس پریزیڈنٹ شی واز لیٹنگ اس نو دیٹ جو ریزیڈنسی میچ ہے اٹ از انکریزنگ بٹ انفارچونیٹلی پاکستانیز کا نمبر از اسٹیٹک. So we need to work on that. جس کی دوسری وجوہات ہیں یہ جو ٹریول بین تھا last year, it is one of them. So as an organization we are trying our very best to connect with the local legislators and help these young physicians who are coming from Pakistan. Eventually یہ ہوگا کہ یہ physicians ہم لوگوں کی طرح, یہ بچے ہم لوگوں کی طرح, they will be part of American fabric and they will be part of American legacy. So this is what is this all about.